بیک بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ یوں تو گلگت بلتستان چاروں موسموں میں دلکش نظارہ پیش کرتا ہے، لیکن ہم اگر بات کریں گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی تو بہار کے موسم کی آمد پر ضلع غزر کا سہانا سما اور دل فریب نظارے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جانیے البر مہک کی اس رپورٹ میں۔ یوں تو پورا گلگت بلتستان قدرتی خوبصورتی، سیاحتی اور تاریخی مقامات سے مالا مال ہے، مگر موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی سیاحتی مقام غزر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ضلع غزر میں اس وقت بہار کا سہانا موسم اپنے جوبن پر ہے۔ باغوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہیں، پھولوں کی پتیاں بکھر کر زمین پر اس طرح بچھی ہوئی ہیں جیسے کوئی رنگین قالین بچھایا گیا ہو۔ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ سردی کے جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں اس میں بڑے محدود ہو جاتے ہیں، بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب بہار کی جو آمد ہوتی ہے اس کے بعد ان کے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ جو سردی کی ایک شدت ہوتی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، تو لوگ پھر اپنے معمول کے مطابق اپنی زمینداری اور دیگر مصروفیات کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے نا موسم۔ غازیوں اور شہداؤں کی سرزمین ضلع غزر سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ وادی نہ صرف سیاحتی، جغرافی، سیاسی اعتبار سے اہم ہے بلکہ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور یہاں کے لوگ بہت پرامن اور مہمان نواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاح موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ضلع غزر کا رخ کرتے ہیں۔ It's Mr. Ramat, and I am a visitor here from America. We just came from Chitral, and it's been about 2 or 3 days here that I've been in Gilgit, and all I can say is it's a very nice place. People here are very hospitable. There's lots of hotels, lots and lots of hotels. You see a hotel everywhere. Honestly, the people are amazing. Food is amazing. The view is obviously breathtaking. And people are very, very nice here. They're willing. اگرچہ سڑکوں کی خستہ حالی کے سبب سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے، مگر اس کے باوجود سیاح وادی غزر کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ چاروں موسموں کے الگ الگ خوبصورت رنگ بکھیرنے والی وادی غزر میں اگر سیاحوں کو سفری اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں تو یہ علاقہ بھی بین الاقوامی سطح پر سیاحت کا ہب بن سکتا ہے۔ البر مہک، چینل 5، ضلع غزر۔ روندو میں جاری جشن نوروز اور یوم پاکستان پولو ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی کمشنر بلتستان کمال خان اور وزیر منصوبہ بندی راجہ ناصر عبداللہ خان تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر اسکردو عارف حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر روندو غلام علی، صدر پولو ایسوسی ایشن کاشف ضیاء اور دیگر بھی موجود تھے۔ ٹورنامنٹ میں روندو سمیت بلتستان بھر کی پولو ٹیموں نے حصہ لیا۔ 7 دنوں سے جاری پولو میچ کا آخری فائنل روندو گرین اور استک سٹار کے مابین کھیلا گیا۔ روندو گرین کی نمائندگی راجہ منصور علی خان جبکہ استک سٹار کی قیادت وزیر ساجد علی کر رہے تھے۔ پولو کے فائنل میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے گراؤنڈ میں موجود ہزاروں کی تعداد میں شائقین پولو نے لطف اٹھایا اور محظوظ ہوئے۔ کھیل کے پہلے ہاف میں روندو گرین نے 4 گول کیے جبکہ استک سٹار کوئی گول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ کھیل کے دوسرے ہاف میں بھی استک سٹار کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ یوں روندو گرین نے 8 گول حاصل کیے اور آخری 5 منٹ کے لمحات میں استک کی ٹیم نے 3 گول داغ دیے، جن میں سے 2 گول ٹورنامنٹ کے سب سے کم عمر ترین کھلاڑی شبیر علی خان مقپون نے کیے، جو استک سٹار کے 1 نمبر پر کھیل رہے تھے۔ اس ٹورنامنٹ کے سب سے کم عمر کے کھلاڑی شبیر حسین کا کھیل کا انداز منفرد تھا اور بہترین کھیل پیش کیے، اور پولو شائقین سمیت مہمانوں نے بھی ان کو داد دی اور بہترین کھیل پیش کرنے پر شبیر کو انعام سے بھی نوازا گیا اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا۔ میچ کے آخری 2 منٹ میں روندو گرین نے 9 گول حاصل کیے اور روندو گرین نے 3 گول کے مقابلے میں 9 گول سے فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یوں فائنل روندو گرین کے نام ہوئی۔ آخر میں مہمان خصوصی سمیت دیگر مہمانوں نے رنر اور ونر ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ یوں 7 دنوں سے جاری پولو ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ انور انجم۔ فیصل آباد میں الفتح اسپورٹس کمپلیکس کی تزئین و آرائش کا کام سست روی کا شکار ہے۔ 2 ماہ گزر جانے کے باوجود کام مکمل نہ ہو سکا۔ کھلاڑیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں الفتح اسپورٹس کمپلیکس کی تزئین و آرائش کا کام انتظامی عدم توجہی کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔
इमरान को 21 जनवरी 2025 से बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस और जिम की बहाली और मरम्मत की गर्ज से 15 दिन के लिए खेलों की सरगर्मियां जारी रखने से रोक दिया गया था, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। इस ताखीर की वजह से खिलाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना है। इधर बैडमिंटन के तकरीबन 150 मेंबरान हैं और ज़्यादा इसमें ऐसा भी है कि सबसे सीनियर, सबसे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर इसी हाल में खेलते हैं। उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में आपको मरम्मत कर देंगे, आपको दोबारा रेगुलर कर देंगे, और अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। असल इसमें अब ये भी मसला पैदा हो गया कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये ख़त्म कब होना है काम, और काम की स्पीड भी आप देखेंगे गैर तसल्ली बख्श है। हमारी जो इंतज़ामिया से और बाला जो हुकाम हैं उनसे यही बात है कि इसको मुकम्मल करवाएं। मेंबरान ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया है कि तज़ीनो आराइश को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं और इस दौरान मेंबरान को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए मुतबादल इंतजाम किया जाए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अदारों की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम 2 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब कल्चरल डे पर पाकपतन के सरकारी अफसरान भी सकाफती रंग में ढल गए। पंजाब कल्चरल डे पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने दफ्तर में पंजाबी पगड़ी पहनकर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा इस हवाले से। असी हैं पंजाबी ते साडा दिल भी पंजाबी। इसी सिलसिला में पाकपतन के म्यूनिसिपल अफसरान की जानब से आज पंजाब कल्चर डे इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त पाकपतन म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं पंजाब कल्चर डे के हवाले से हमें क्या बताएंगे। ये आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। पग पंजाब की सकाफत है, इसलिए हमने पग पहन रखी है और अपनी सकाफत को उजागर कर रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानब से आज कल्चर डे मनाने का हुक्म जारी किया गया है और हम पग्गे बांधकर अपने काम को सरंजाम दे रहे हैं। जी एसपी कैंट डिवीजन ने थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में खवातीन के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें इलाका मकीन खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। खुली कचहरी के दौरान एसपी कैंट कायनात अजहर ने खवातीन के मसाइल नहायत ही गौर से सुने और मुताल्लिका अफसरान को मौके पर ही हिदायत जारी करते हुए मसाइल के फौरी और मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी कराई। एसपी कैंट कायनात अजहर ने कहा कि खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को बराह रास्त बातचीत का मौका देना और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाना है। पंजाब कल्चरल डे के मौके पर कसूर के स्कूलों में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गईं। बच्चों ने रवायती लिबास में सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने अपनी तहजीब व तमद्दुन से गहरी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने रवायती रंगों को दुनिया के सामने फ़ख्रिया अंदाज में पेश किया। कसूर में रंगारंग तकरीबात में बच्चों ने पंजाब की सकाफत को नहायत खूबसूरती से उजागर किया। रवायती कुर्ते, धोती, परांदे और खुद से पहने बच्चों ने न सिर्फ अपनी सकाफत से मोहब्बत का सबूत दिया बल्कि हर जाविये से पंजाब की शान और पहचान को उजागर किया। छोटे बच्चों ने चरखे, हुक्के, डांडिया, चूड़ियों, मटकों और मेहंदी के स्टॉल सजाकर हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तकरीब में एक खुसूसी झलक वो भी थी जब तलबा व तालिबात ने रिवायती दूल्हा दुल्हन के लिबास पहनकर पंजाब के शादी ब्याह के कल्चरल को खूबसूरती से पेश किया। बच्चियों के हाथों पर रची मेहंदी और चूड़ियों की कनकनाहट ने फ़ज़ा को मज़ीद दिलकश बना दिया। पंजाब कल्चरल डे के इस शानदार इनेकाद ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि हमारी नौजवान नस्ल अपनी तहजीब व तमद्दुन से गहरी मोहब्बत रखती है। 326वें बैसाखी मेले की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। सिख यात्री आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा करके वापस आ गए हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद कमर अब्बास से, जो इस वक्त गुरुद्वारे जन्म आस्थान में मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं गुरुद्वारा जरमस्तान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिखों के मेला बैसाखी मेले का आगाज़ हो चुका है। अंदरूनी और बरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री पहुँच चुके हैं। मेरे साथ इंडिया से आए हुए एक सरदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका बैसाखी मेले के हवाले से क्या कहना है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 7000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। जी इनका कहना है कि पाकिस्तान आके हमें बहुत प्यार और मोहब्बत मिली और सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत की तरफ से रेट मुकर्रर न होने पर गल्ला मंडी में 40 किलोग्राम गंदम 2300 रुपये फ़रोख्त होने पर किसान इत्तेहाद ने 16 अप्रैल से अपने बच्चों, ख़वातीन के हमरा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं पाकपतन से तारिक सज्जाद चिश्ती अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से गंदम के रेट मुकर्रर न होने के बायस किसानों को माली मुश्किलात का सामना है। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम का रेट 4000 फी मन मुकर्रर न किया तो 16 अप्रैल को बच्चों और खवातीन के साथ किसान एहतजाज करेंगे। काश्तकार जब अपनी गंदम लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं तो वो 2200-2300 रुपए मन बिक रही है। काश्तकार को फी मन 1700-1800 रुपए नुकसान हो रहा है। हमारा मरियम नवाज साहब से मुतालबा है कि आपने जो वादा किया है पूरा करें। काश्तकारों को कम से कम 4000 रेट मिलेगा तो वो अगली फसल काश्त कर सकेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अब खामोश नहीं बैठेगा। 16 अप्रैल को हम तहरीक का आगाज शुरू कर रहे हैं। काश्तकार कहते हैं कि 6 माह मेहनत की, अब जब फसल तैयार हुई तो नफा तो दूर, फसल पर होने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मंडी में गंदम 2200 से 2300 रुपए फी मन कैसे फरोख्त कर दें। गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। गंदम मार्केट में 2200-2300 रुपए बिक रही है और जो हमने खर्चा किया था वो हमारा खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। किसान करें तो करें क्या, इकट्ठे बच्चे बेच के हमने ये गंदम काश्त की थी, आगे वाली फसल हम कैसे बीजेंगे। किसानों का कहना है कि अगर गंदम की यही कीमत रही तो आइंदा गंदम की फसल काश्त नहीं करेंगे। गंदम का सरकारी रेट न मिलने पर किसान परेशान कुन दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पंजाब सकाफत दे रंग वैखो खानेवाल दे संग। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खानेवाल में पंजाब कल्चर डे रिवायती और जोशो खरोश से मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब ज़िला काउंसिल हॉल में सजाई गई। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हुक्म के मुताबिक पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल दे पंजाब सकाफती का डे अज मनाया जा रहा है। साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने चौधरी उसामा जो MP है जानते सर दसिएगा कि तुसी अज वज़ीर पंजाब की हदायत अज तुसी शामिल होए हो, पंजाब के हवाले ने क्या मैसेज देना चाहोगे। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ MP ਚੌਧਰੀ ਉਸਾਮਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਲਮਾ ਸਲਮਾਨ ਦਾ CEO ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ प्रोग्राम हर बारी होने चाहिए ने। 18 हज़ारी में लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम तरोड़ के तालीमी इदारे में पंजाब सकाफत का दिन मनाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने पंजाबी रस्म व रिवाज और खेलों के मुजाहरों में हिस्सा लिया और पंजाब से मोहब्बत का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पंजाब नॉन फॉर्मल स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट मोज़ा तरोड़ में पंजाबी सकाफत का दिन मनाया गया।
جس میں طلبہ طلبات نے پنجاب کے رسم و رواج کو خوب سراہا۔ بچوں نے پٹھوگرام، اخروٹ، گلی ڈنڈا اور دیگر مقامی کھیلوں میں حصہ لیا اور پنجاب سے محبت کا اظہار کیا۔ ہمیں پنجابی ہونے پر فخر ہے، ہم پنجابی زبانیں بولتے ہیں، ہم پنجاب میں رہتے ہیں۔ پنجابی ہمارا جو یہ پنجابی ورثہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت قدیمی روایات ہیں۔ اگر دیکھی جائیں تو یہاں پہ ریڈیو ملتا ہے، یہاں پہ لالٹین ملتی ہے، یہاں پہ دیگر ایسے دیے وغیرہ ملتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کی اس وقت کا ورثہ تھے، کہ جو ان کے معاون رہے ہیں، اس وقت معاون رہے ہیں کہ جب یہاں پہ لائٹ روشنی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بچوں کو ہم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جو پنجابی ثقافت ہے یا پنجابی زبان ہے وہ کوئی گالی یا کوئی حقارت کی نظر سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پنجابی ہیں۔ طلبہ طلبات اور استاذہ کا کہنا تھا کہ پنجابی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے ایسے پروگرام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں ان پروگرام پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین شہباز تراج کے ساتھ محمد شہزاد خان، چینل 5 نیوز، 18 ہزاری۔ ایران میں المناک واقعے میں 8 پاکستانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان میں محمد خالد بھی شامل تھے۔ ان کے گھر پر سوگ کا ماحول ہے، ہر طرف غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے چینل 5 نیوز مفیظ الرحمان اس وقت محمد خالد کے گھر پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی مفیظ الرحمان، کیا مناظر آگاہ کیجیے گا؟ جی اس وقت میں احمد پور شرقیہ محراب والا میں موجود ہوں، جہاں پہ ایران میں 8 افراد قتل ہوئے، ان میں ایک خالد نامی شخص جس کو اس وقت 48 گھنٹے ہو گئے ہیں قتل ہوئے، جس کی حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی اس طرح سے اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پہنچائی جائے۔ ان کے جو ہیں ورثہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ مہربانی کرو چا میرے پوت کو بھیجے وہ چا میں مر ویسا میرے پوت نکلے کو کڈن گئے میری گزارش ہے دوجا دیارا تھی کہ میرے باپے دی پلیز ڈیڈ باڈی سا کو دے دو۔ بالکل اس وقت محمد خالد کا تمام گھر اور اہل علاقہ احمد پور شرقیہ اس وقت شدید افسردہ اور غمزدہ ہیں، اور گھر والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی نمائندہ آیا ہے، نہ ہی ان کی ڈیڈ باڈی پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری جو ہے محمد خالد کی میت کو یہاں پہ پہنچایا جائے تاکہ مذہبی طریقے سے یہ اس کی تدفین کر سکیں۔ جی ایران میں قتل ہونے والے جلال پور پیرووالا کے 20 سالہ کار مکینک محمد عامر کے ورثہ نے احتجاج کرتے ہوئے ملتان روڈ بلاک کر دیا۔ ورثہ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عامر کی میت وطن پہنچائی جائے۔ جلال پور پیرووالا میں احتجاج کرتے ہوئے ملتان روڈ بلاک کر دیا گیا۔ مقتول کے ورثہ نے ٹائر جلا کر گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ 3 دن گزر گئے ہیں، محمد عامر کی میت کا تاحال کچھ پتہ نہیں۔ حکومتی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ جب تک کوئی ہمیں میت واپس پاکستان لانے کی یقین دہانی نہیں کرائے گا تب تک ہم لوگ روڈ بلاک کر رکھیں گے۔ واضح رہے کہ بہاولپور کا رہائشی مزدور نعیم اور محمد عامر آپس میں کزن تھے۔ فیصل آباد میں محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے LPG کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 401 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ 330 دکانوں کا سامان ضبط جبکہ 8 کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی ہدایات پر سول ڈیفنس آفیسر نے غیر قانونی گیس ریفلنگ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری کی ہیں۔ 401 دکانوں کو سیل اور فیصل آباد میں 280 مالکان کا سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ سمندری 16 جراوالا چک جھمرا میں 19 دکانوں پر کارروائی کرتے ہوئے مالکان کا سامان ضبط کرنے کے علاوہ 8 مالکان کے خلاف سیل توڑنے پر مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ سول ڈیفنس آفیسر کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا اور غیر قانونی گیس کاروبار کے ذریعے پیدا ہونے والے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ خانیوال میں محکمہ صحت کی جانب سے 1 سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے آگاہی مہم جاری ہے، جس کا مقصد والدین، بچے اور اساتذہ سب کو پولیو کے خلاف ایک مشن کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک قومی جنگ ہے۔ چودھری رضوان کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔
स्कूल में जहां कायदे सिखाए जाते हैं वहीं एक और फर्ज भी निभाया जा रहा है। बच्चों को पोलियो से बचाने का फर्ज। पोलियो एक छोटा सा वायरस जो जिंदगी भर के मजूरी बन सकता है, मगर खुशकिस्मती से इसका इलाज 2 कतरे हैं जिन्हें पिलाकर बच्चों को इससे महफूज किया जा सकता है। आज हमने यहाँ पे एक यूपैक मीटिंग का अरेंज किया है। इस मीटिंग के जरिए हम तमाम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है और बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं, और एज अ स्कूल टीचर हमारी भी जिम्मेदारी होती है और हम तावन करते हैं। ये वो हीरो हैं जिनके पास ना कैमरे हैं ना स्टेज, लेकिन ये दिन रात मुल्क के बच्चों की हिफाजत में मसरूफ हैं। ये 2 कतरे नहीं, ये 2 दुआएं हैं, 2 मुहाफ़िज़, 2 वादे, एक महफूज बचपन और एक रोशन कल है। माशरे के हर फर्द को पोलियो की मुहिम में हिस्सा लेना लाजमी हो ताकि बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी रिजवान खानेवाल। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि दादू में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात की जानिब से गर्मी की शिद्दत इजाफे की पेशगोई के बावजूद जिला इंतज़ामिया दादू में हीट स्ट्रोक कैंप कायम ना कर सके। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। देखें, आज दादू में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है शहरों ने जो है गर्मी से बचाव के लिए मशरूबात के दुकानों का रुख कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है गर्मी का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद जो है आज दादू में जो गर्मी का दर्जा हरारत जो है वो 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मैं आपको बताऊं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से दादू के शहरी और देही इलाकों में जो है बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है। साथ साथ ही शहरी हलकों का ये भी कहना है कि आया गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों जो है हीट स्ट्रोक जो कैंप का इनकाद किया जाता था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त जो है गायब है। दादू के शहरी हलकों का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके मद्देनज़र जो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और जो है जो हीट स्ट्रोक सेंटर का भी क़याम किया जाए ताकि जो गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है उससे जो बच सकें। जी, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिससे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का इजहार ख्याल जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आज़म नज़ीर तारर कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म आस्थान में बैसाखी मेले की तकरीबात पर दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए फील्ड अस्पताल और पोलियो काउंटर कायम किया गया है। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवीद कम्बो की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव और CEO हेल्थ डॉक्टर तलहा खान शेरवानी के हिदायत पर गुरुद्वारा जन्म आस्थान में बैसाखी मेले की तकरीबात पर दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए फील्ड अस्पताल और पोलियो काउंटर कायम किया गया, जहां पर 3 शिफ्टों में 24 आवर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं और मेहमान सिख यात्रियों को बेहतरीन खिदमात दे रहे हैं। कि अगर जिस तरह कोई गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसके लिए हम डेफिनेटली हमें DHQ, क्योंकि उधर सहूलियात एक्सरे की और बाकी दीगर सहूलियात बेहतर हैं और तमाम कंसल्टेंट और इक्विपमेंट्स और थिएटर की सहूलियात ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं। इधर से हमारा फुल प्रूफ रेफरल सिस्टम है। 1122 का हमारा काउंटर बना हुआ है, उनकी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, उनके डेस्क मौजूद हैं। इमरजेंसी के लिए हमारे पास फुल कंट्रोल करने के और रेफरल का एक फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपसे फरमाया कि हमारा डॉक्टर और स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र जाता है जो ना सिर्फ उनको प्रॉपर गाइड करता है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन को जो है ना उनको इलाज की फराहमी में उनका मददगार साबित होता है। अस्पताल के बाहर फ्लेक्स अवेजा हैं जिसके ऊपर CEO हेल्थ व दीगर के नंबर अवेजा हैं। एमरजेंसी मरीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शिफ्ट करके मुकम्मल सहूलियात दी जाती हैं। कैमरा टीम के साथ आफर नवीद कम्बो, 5 न्यूज़, ननकाना साहब। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद में मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल इंचार्ज कार्डियोलॉजी वार्ड डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, सादिकाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में जो है दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वाले से हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि शहरियों को जो है एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए और रोजाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, जैसा कि मौसम की तब्दीली, अचानक गर्मी आ गई है, तो इस वजह से जो हमारे पास आउटडोर का फ्लो है ना, वो उसमें काफ़ी जो है ना वो इजाफा हो गया है। इसमें खसूसी तौर पे जो दिल के अटैक के मरीज़ हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी अचानक पड़ने की वजह से पानी की कमी होती है, तो मरीज़ रिस्क पे होता है खुदा न खास्ता अटैक ना हो जाए। फिर जब साथ धड़कन के मसाइल हो जाएं तो वो मरीज़ जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं उन्हें भी जो है ना बार बार फॉलो अप करवाना पड़ता है, और इवन ये कि उनको दाखिल होना पड़ता है हमारे पास। जैसे देख लें, हमारे पास इंडोर में मरीज़ का रश बढ़ गया है, इवन हमने दिल के मरीज़ों को कुछ को रिटेन किया हुआ है इमरजेंसी के अंदर। तो इसमें जो एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि एक तो पानी का इस्तेमाल करें, सर को ढांप के रखें, ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और ख़ुसूसन जब बाहर निकलें किसी ज़रूरी काम की वजह से तो अपने आप को गर्मी से बचाने का जो है ना इंतजाम करके निकलें। इस वजह से फिर हम जो है ना वो आवाम को अगर आगाही दें तो हमें जो दिल के मरीज़ हैं और ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को जो है ना हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, इनका यही कहना था कि शहरियों को चाहिए कि वो घर से बाहर निकले तो अपने सर मुंह नाक को जो है ढांप कर निकले और अद्वियात जो है जारी रखे और ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां खाए ताकि किसी भी बड़ी बीमारी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया तलहा अकमल, आपने हमें आगाह किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, तब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।